हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ 11 ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਟ 4 8th 9th 10th ਐਂਡ 11th ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ 1st to ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 5th ਤੋਂ 7 ਤੱਕ 1st to 4th ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਹਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, 15th ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਬੂਲੀਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਰੋਲਸ ਲਾ, ਦੇ ਫॉर्म ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਇਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਸ। नेक्स्ट थर्ड है फोर लीटर ऑफ 0.02 मोलर aqueous solution of sodium chloride was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution, ये तुसी numerical कढ़ना है दा। इत्थे formula बेटे लगेगा M1 V1 is equal to M2 V2, ठीक है जी। पहली जी मोलैरिटी दी हुई है 0.02 दी हुई है, 0.02 इंटू वॉल्यूम पहला कितना दिता है तुहानू 4 लीटर इज इक्वल टू, उस तो बाद वो कहता है बाय डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर, 1 लीटर होर पानी पा दिता है, यानी कि वॉल्यूम है जो 5 लीटर हो गया। पहला 4 लीटर सी, 1 लीटर होर पाता तो 5 लीटर हो गया। M2 है जो असी कढ़ना है, मोलैरिटी कढ़नी है ना ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। M2 और वॉल्यूम हुण कितना बन गया V2 वाला 5 लीटर हो गया। M2 तुसी बस फाइंड आउट कर लो, M2 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 4/5, ठीक है जी। ये तुहाडा जो तुसी इसनूं सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.016। नैक्सट आ गया द चार्ज ऑन 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 नैगेटिव। ये चार्ज कितना होएगा? ये चार्ज तुसी कढ़ना बेटे, एक दे उत्ते तुसी 1 मोल इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते कितना चार्ज हुंदा 1 फैराडे, जां उहनूं लिखो 96,500 कूलम। और 3 इलैक्ट्रॉन्स ते कितना होएगा, ठीक है जी। इनू 3 नाल तुसी मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेना तुसी इन्हां दे विच्चों किहड़ी वैल्यू आएगी। नैक्सट आ द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इज फिक्सड है। शी का जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल असी 0 लेने हैं, 0 वोल्ट। नैक्सट है फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन दिता है NO प्लस O2 NO2, रेट दिता होया K NO2 है ना, ये ऊपर 2 पाया, यदा मतलब बैलेंस सही नहीं किया। 2 नाइट्रोजना ने तो ये मूरे भी 2 आएगा, ठीक नहीं लिखा होया, 2 हो गया। 2 ऑक्सीजन, 2 इत्थे हो गया, 4 हो गई, इत्थे भी 4 हो गई। इस करके NO2 NO दे ऊपर 2 पाया, ऑक्सीजन है जिहड़ा 1 आ तो ये ऊपर कुछ नहीं पाया, जो अंडरस्टूड ही 1 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वैसल इज डबल्ड, जेड़े वैसल दे विच रिएक्शन हो रहा
पहला एडा किसी वैसल हो, उस तो बाद उसनू डबल कर दिता गया, ठीक है जी, उस तो दुगना हो गया। तो ये हुण रिएक्शन हो रहा, तो की फर्क पेगा? कहता जेकर वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वैसल का जिहड़ा वॉल्यूम आ उसनू असीं डबल कर दिंदे आ, दैन द रेट ऑफ द रिएक्शन दे विच की अंतर पेगा? दैन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिमिनिश टू 1/8 ऑफ इट्स इनीशियल वैल्यू। इनीशियल वैल्यू के नालों 1/8 हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ, पीसेस ऑफ वुड बर्न फास्टर दैन ए लॉग ऑफ वुड ऑफ द सेम मास बिकॉज। छोटे छोटे पीस तुसीं वैसे भी देखो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਬਾਲਦੇ ਆਂ, ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ। लॉग ऑफ वुड मतलब जी वड्डी लक्कड़ हैगी, ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ज़्यादा आ, नीड्स मोर टाइम टू बर्न। क्वेश्चन पूछा ने पीसेस ऑफ वुड बर्न फास्टर, छोटे छोटे पीस ने ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ बल ਜਾਂਦੇ ਨੇ, दैन ए लॉग ऑफ वुड। फिर हैगा पीसेस ऑफ वुड हैव लार्जर सरफेस एरिया। पहला कहता लॉग ऑफ वुड का सरफेस एरिया ज़्यादा, हुण कहता पीसेस ऑफ वुड का सरफेस एरिया। ऑल पीसेस ऑफ वुड कैच फायर एट द सेम टाइम। ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ हायर डेंसिटी दैन पीस ऑफ द सेम वुड। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫॉर ए जीरो ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼। जीरो ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਸੀਂ जीरो ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ फस्ट आर्डर, सैकेंड, थर्ड कोई भी होवे, तो वो यूनिट्स किस तरह कढ़ने ने उस दे विच तुसीं उसनूं देखना है। इत्थे मैं तुहानूं दस दिंदी हां, मोल पर लीटर पर सैकेंड है। एथिलीन डाईअमाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एथिलीन डाईअमाइन, ठीक है, दो अमाइन ग्रुप ने तो दो थां ते वो देगा, तो यह मतलब की हो गया? बाइडेंटेट हो गया। नैक्सट है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeNO H2O5 और SO4। SO4 ते हुंदा -2, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करना है। X हो गया, ए भी 0 और ए भी 0, ठीक है। देखो कितना बन गया हुण, X इज इक्वल टू बस सिंपल ही हो गया -2 आ, जो असी राइट साइड से लिख देंगे +2 हो जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब ए वाला हो गया। द ऑप्टिकली एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपलैक्स आयन। ऑप्टिकली एक्टिव केड़ा होएगा? कोऑर्डिनेशन कंपलैक्स आयन अमंग द फॉलोइंग, इन्हां दे विच्चों केड़ा होएगा? ट्रांस वाला नहीं होएगा, इन्हां चों तां होना ही नहीं, एसिस वाला होएगा, बना के देख लियो। हीमोग्लोबिन दे विच की हुंदा? आयरन। पिछले पेपर च भी क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन इन एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स दे विच ज़्यादा क्वेश्चन जिहड़े रिएक्शंस ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर इज। ईथर किहदे नाल प्रिपेयर हुंदा? विलियमसन्स सिंथेसिस। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेड ऑन बेरियम सल्फेट की दिंदा? इहदे नाल की बनेगा? बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलन नाल भी होएगा, बेनेडिक्ट नाल भी, फेलिंग सारे नाल हो जाएगा, इस करके ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। सॉल्युबिलिटी का तो वैसे थानू एक रीजन मैं दस्सिया ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड। स्ट्रोंग एसिड केड़ा होएगा? ए वाला, क्योंकि ये विच कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई नहीं है। नैक्सट पैराग्राफ आ, अपने आप पढ़ के तुसी इस दे क्वेश्चन दे जिहड़े दिते हुए ने उन्हां दे आंसर फाइंड आउट करने ने। नैक्सट आ गया ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स दे विच फर्स्ट है एन इलैक्ट्रोकैमिकल सेल वर्क्स ओनली इफ EMF इज नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आएगा जो तां वर्क करेगा, ये फॉल्स है। IUPAC नेम दसना सी इसका। पहला तो देखो, ਇਹਦਾ नेम पहला थोनू फाइंड आउट करना पऊगा
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ x ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾइंड आउट ਕਰੋਗੇ k ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ +1 ਹੁੰਦਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ -1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢੋਗੇ ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਏ ਇਹ 3 + x - 6 = 0 और x - 3 = 0 और x = 3 हो गया 3 तो हो गया ठीक है ये तो ठीक है मतलब ऑक्सीजन स्टेट तो ठीक है। नैक्सट नेम कैटाइन का पहला देना है तो पोटाशियम हो गया ये भी ठीक है। उस तो बाद तुसी लिखना कि हैग्जा साइनाइडो ठीक है हैग्जा सियानो कह लो या हैग्जा साइनाइडो फेरेट एनायरन फेरेट लिखना ये पर गलत लिखा इन्हें आयरन लिखता इतने इस करके फॉल्स है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ये वाला ट्रू है। मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइट टू गिव नाइट्रोमीथेन ये भी ठीक है। रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स गिव्स कैंड्री अमाइंस नो ये फॉल्स है। नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ने सॉल्युबिलिटी वाले दा सॉरी सोल्यूशन वाले लैसन दे विच मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और ये मोलर कंसनट्रेशन कैलकुलेट द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन जेकर ऑस्मोटिक प्रैशर उसका दिता होया ठीक है जी। यदा फार्मूला लगे पाई = CRT मोलर कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है सी कढ़ना है तुसी ठीक है। आर का तुहानू पता ही हुंदा वैल्यू 8.314 टैंपरेचर दिता ऑस्मोटिक प्रैशर भी दिता होया। नैक्सट है why sodium chloride solution freezes at lower temperature than water but boils at high temperature than water ये थ्योरी का क्वेश्चन है तुहाडा। नैक्सट आ गया राइट नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है फॉर द जनरल इलैक्ट्रोड रिएक्शन जनरल जिहड़ा इलैक्ट्रोड रिएक्शन होएगा उहदे लई तुसीं इसकी इक्वेशन लिखनी है। कैलकुलेट इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेंपरेचर स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का दिता है ठीक है बेटे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ देखो ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਦੀ करना बस कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो बन जाएगा कॉपर ठीक है ना। उसने क्या कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर का करना डिप्ड इन 0.1 कॉपर सल्फेट का दिता है तो स्टैंडर्ड सेम फार्मूला सेम लगेगा। इत्थे तुसी लिखोगे E = E0 - 0.059 ओवर इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने n पाना ना n का इत्थे इत्थे n तो यह 2 आएगा ये वाली वैल्यू इत्थे 2 आएगी इनटू लॉग 1 कॉपर क्योंकि कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है। प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स करते हैं आप ये वाले प्रोडक्ट्स हो गए रिएक्टेंट्स हो गए प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म चा तो 1 लेने असी 1 कॉपर आयंस कॉपर आयन की कंसनट्रेशन इत्थे दिती हुई है 0.1 मोलर तो इत्थों तुसीं इहनूं कैलकुलेट कर लेना है और E0 कॉपर का दिता होया। नैक्सट है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड 80% दे लई ये भी पिछलियां वीडियोज़ दे विच बहुत डिटेल दे विच बटे शुरू दे विच जिहड़े 1st to 4th पेपर कीते ने ना वो मैं बहुत डिटेल दे नाल समझाए ने ये वाले मैं तुहानूं न्यूमेरिकल्स ते हुण आपां बार-बार इस तरह नहीं करदे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती हैगी तुसीं उन्हां वीडियोज़ तो समझ सकते होगे जेकर कोई प्रॉब्लम आउंदी आ जेकर फिर भी कोई प्रॉब्लम आउंदी आ तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच पुछो मैं तुहानूं नैक्सट वीडियो दे विचों सारे न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन कोई भी तुहाडा जां ऑर्गैनिक दा होएगा तो मैं तुहानूं ओह सॉल्व करके जरूर भेजूंगी। हाफ लाइफ पीरियड पुछया ने फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिता होया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 1/5 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लैफ्ट बिहाइंड 1/5 जिहड़ा रह गया पिछे ठीक है जिहड़े आपां लिखदे ना कंसनट्रेशन A0 ओवर A उन्हें दिता ही होया पहले ही 1/5 जे इहनूं आपां A सपोज करते हैं तो वह होएगा A/5 आएगा। नैक्सट मैंगनीज है जिहड़ा 2+ कंपाउंड्स मोर स्टेबल दैन Fe2+ ठीक है टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 मतलब +3 वाल नूं जेकर इस ने जाना होवे तो ये वाला जिहड़ा ज़्यादा स्टेबल है ये क्यों हुंदा क्योंकि ये जो 2 इलैक्ट्रॉन्स लूज कर जाता तो यदी कंपोजिशन इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रह जाती 3d5
हाफ फील्ड की एक्सट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है और यदी रह जाती है जो 2 मूव करता 3d6 तो ये एक रिमूव करके तो ये फिर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब जोड़ा मैगनीज 2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +3 जन के फेरस है जो +2 वाला जोड़ा ये घट स्टेबल है, ये +3 वाल छेती चला जाएगा, वो वाला नहीं जाएगा। डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड राइट वन लिंकेज आइसोमर ऑफ इस जोड़ा दिता है तुहानूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसकी लिंकेज आइसोमेरिज्म दस। लिंकेज का मतलब की हुंदा किहड़ा लिंक बना रहा सेंट्रल मैटल एटम के नाल कौन लिंक बना रहा, इत्थे ऑक्सीजन बना रहा, ठीक है। तो आपां की करना है ये दोनों तरह लिंक हो जाए, नाइट्रोजन के थ्रू भी लिंक कर सकता है। तो तुसीं लिंकेज आइसोमर की लिखोगे इहदा हुण CONO2 बाकी सेम लिख दूंगी बस NH3 5 Cl2, ठीक है जी। ये लिंकेज आइसोमरिज्म हो गया था कि लिंक किवें करता है, लिगेंड है जोड़ा ऑक्सीजन के थ्रू पहला लिंक कर रहा है, नैक्सट अगले दे विच नाइट्रोजन के थ्रू। वाई ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आइसोमेरिक अल्कोहल्स। देन आई गिव द पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर देने हैं तुसी ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। पोजीशन मतलब तुसी इसकी पोजीशन चेंज करनी हैगी OH दी, ठीक है। इनू सैकेंड ते लगा दो, फस्ट नाल लग्या होया ना हुण सैकेंड ते लगा दो, जां एक तो देखो इहदा ये हो सकता CH3 CH2 CH इत्थे OH लगा दो ते CH3, ठीक है। जां तां ये हो सकता 2 ओल बन सकता, जां इहदी पोजीशन होर किवें चेंज हो सकती है CH3 OH CH3, जां इस तरह हो सकती, एक पासे मिथाइल ग्रुप लग सकता, ठीक है ना। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स, क्वेश्चन हो चुके हैं भी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन तुसी कंप्लीट करना तो HCN दे नाल ये बन जाएगा बेंजीन हो गया ना C6H5 CH ये नाल CN लग जाएगा तो एक साइड ते ये नाल लग जाएगा OH, ठीक है। और B वाला प्रोडक्ट की बनेगा CH COH और ये नाल लगेगा OH। नेक्स्ट एल्डिहाइड्स आर मोर एक्टिव दैन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोनाइट्राइल। एनिलीन नूं तुसीं बेंजोनाइट्राइल दे विच किस तरह कन्वर्ट करोगे। ਇਹਦਾ एनिलीन बना लो NH2 नाइट्रस एसिड दे नाल करवाना NaNO2 एंड HCl। डायजोनियम क्लोराइड बन जूगा N2 प्लस ते Cl नेगेटिव और फिर CuCN दे नाल इसका रिएक्शन करवाने हो तुसीं तां बेंजोनाइट्राइल बन जूगा CN, ठीक है जी। राइट डिफरेंसिस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइबरस प्रोटीन, ये भी लास्ट पेपर विच हो चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कैन ए कॉपर स्पून भी यूज टू स्टर ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट दे विच कॉपर स्पून नूं असीं कहंदा कैन ए कॉपर स्पून भी यूज, हाँ जी, टू स्टर ए सोल्यूशन वैसल दे विच सोल्यूशन हैगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इहदे विच हैगा सिल्वर नाइट्रेट GNO3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਸਪੂਨ ਪਾਤਾ ਕਾਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿਲਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ कि जिहड़ा फार्मूले नूं असीं याद करते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पिटेगा। वो ये सीरी नूं याद करन दा ही ढंग आ, ठीक है। उस तुसीं देखना वीडियो दे विच तां तुहानूं पता लग जाएगा, मेरी वीडियो वो अपलोड कीती हुई है कि उहदे मुताबक जिहड़ा कॉपर है दैट इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, ठीक है जी।
ज़्यादा रिएक्टिव होएगा, इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ नहीं पा सकते। और उस तो बाद ਇਹਨੇ आ निकल गलत लिखिया इसने, ठीक है, ਇੱਥੇ सिल्वर ਦਾ देना ਸੀ ਇਹਨੇ, सिल्वर इधर कॉपर ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਪਰ ਆ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ मतलब जेकर ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਾਪਰ 2+ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਆਇਨ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆਇਨਸ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਲਵਰ ਆਇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਲਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਡ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ E0 ਸੈੱਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है जी। और कैथोड का यदा जो सिल्वर का है ये निकल दे रखा ना, इन्हें निकल का नहीं सी देना, इतने सिल्वर का यह हैगा 0.80 वोल्ट। तो तुसी इत्थे लिखोगे 0.80 माइनस 0.34, तो यदा आंसर आएगा प्लस 0.46 वोल्ट। प्लस था तो यदा मतलब रिएक्शन होएगा, इस तो सानू ये प्रूफ हो गया कि यह रिएक्शन इत्थे होएगा, जान कि कॉपर है जिहड़ा सिल्वर नूं उहदे विच्चों कढ देगा, रिएक्ट करेगा उस दे नाल। नेक्स्ट आ गया द रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एनक्लोज्ड बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, L दिती है, हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दिता A दिता होया, फाउंड टू विद 30 ओम रेजिस्टेंस दिता होया R, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर C दिता होया, ये वाला C दिता होया। देन रिएक्शंस आ गए, reaction between NO2 and CO2 gives CO2 takes place by the following mechanism। तो रेट एक्सप्रैशन दसनी है, बहुत ईजी है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दसना है, स्लो स्टैप है जोड़ा ये रेट टर्मिंग स्टैप होंदा। नैक्सट है विक्टर मिलर का टेस्ट है, ये मैं तुहानू फर्स्ट सैकेंड थर्ड तिना दे दसे हुए ने। नैक्सट थ्योरी के क्वेश्चन ने सारे। फिर आ गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर्ड हाउ डज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, सोडियम नाइट्राइट एंड क्यूप्रस क्लोराइड। दैन आ गया डी ब्लॉक दे पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड KMnO4, KMnO4 रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड फेरस सल्फेट। SCCl3 is colorless while TiCl3 is colored, ठीक है। सब अनपेयर्ड पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना, तुहानू इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्हां दी आएगी जेकर तां ही तुसीं इस नूं सॉल्व कर सकोगे। नैक्सट आ गया नेमिंग रिएक्शंस हैलो अल्केन ते हैलो अरीन दे। नैक्सट बेटे अगला पेपर आ गया 9th पेपर है इसका, 8 तक आप सॉल्व कर चुके हैं। 9th पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, two solutions A and B are separated by semi permeable membrane if the solvent flows from A to B। दो सोल्यूशन ने A ते B सैमी परमीएबल मैंबर दे नाल उन्हां नूं वक्खो वक्खरे कीता होया। इफ द सॉल्वेंट फ्लो हो रहा A तो B तक, ठीक है। तो यदा मतलब की है B दे विच सॉल्वेंट घट है, ठीक है ना। यदा मतलब A इज लैस कंसनट्रेटेड दैन B,
ए घट कंसनट्रेटेड आ, उहदे विच सॉल्वेंट ज़्यादा, बी च घट है, ये वाला बी ऑप्शन आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये विच आएगा सोडियम सल्फेट। ये तुहानूं वॉट ऑफ फैक्टर है जिहड़ा वो कड्ढना आना चाहिए, जिवें भी तुसीं इहदे विच कड्ढोगे एक्वा सोल्यूशन सारे की कहता विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 सब की कंसनट्रेशन दी हुई है, फार्मूला च लगेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई वॉट ऑफ फैक्टर के बी एम, ठीक है जी। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आप कढ़ना है, कितना होएगा दैन आई, ये तुसी मतलब भी काफ़ी वड्डा सोल्यूशन इहदा करना पैना है, तो यदा आंसर यह है, तुसी अपनी बुक दे तो देख के इहनूं सॉल्व करियो, नहीं होएगा तो मैनूं दस्सिओ, तो मैं तुहानूं फिर अगली वीडियो च सॉल्व करके देवांगी। दैन दा हैगा ऑस्मोटिक प्रैशर ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ऑस्मोटिक प्रैशर फाइंड आउट करना, ठीक है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी दिता होया, आर दिता होया और टी टैंपरेचर नूं कैल्विन च कन्वर्ट कर लेना। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटैशियम ब्रोमाइड एंड पोटैशियम क्लोराइड दे दिते ने, फाइंड आउट किहदी करनी है, सोडियम ब्रोमाइड दी। देखो सोडियम ब्रोमाइड दी फाइंड आउट करनी है, ये 2 मार्क्स दे विच भी क्वेश्चन आ जाता हुंदा इस तरह का। सोडियम ब्रोमाइड की करनी है, तुहानूं सोडियम भी चाहिए और ब्रोमाइड भी चाहिए, ब्रोमीन चाहिए। सोडियम ये तुहानूं मिल जाना, ब्रोमीन ये मिल जाएगा, मतलब इन्होंने दोनों की वैल्यूज़ नूं तां प्लस कर दो, ये माइनस की करना तुसीं क्लोराइड ते पोटैशियम, ते ये वाली नूं माइनस कर दो, तो वो जी वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा। यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के यूनिट्स रजिस्टिविटी का उल्टा, ठीक है, रजिस्टिविटी के जोड़े होंगे उस तो उल्टा होंगे ने, ओम सेंटीमीटर रजिस्टिविटी के ने, कंडक्टिविटी के पर ओम पर सेंटीमीटर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन केड़ी होएगी ये लिए, ए वाली सी। द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए की होगा, जो रेट दे होंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस इज, घट्टो घट्ट एनर्जी कितनी चाहिए, थ्रैशोल्ड एनर्जी। हाउ मैनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये तो आयन्स किन्ने बन गए, देखो बेटा एक तो आयन ए वाला बन जाएगा, तो 3 क्लोराइड के बन, 3 and 4 बन गए। IUPAC नेम दसना असी, सब तो पहला असी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कढ़ांगे, X 0 आ, -1 -1 -1, ठीक है। ये जो सारा ऐड करते हो 1 2 3 4 ते राइट साइड ते जाएगा तो +4 हो जाएगा, 4 हो गया। तो तुसीं किवें हुण अल्फाबैटिकली लिखना है इसनूं, एक तो अमाइन हो गया, ट्राई अमाइनो अमाइन, दैन हो गया ब्रोमो हो गया बी ते, क्लोरो हो गया, दैन नाइट्रो हो गया, टी हो गया ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम क्लोराइड, ये वाला नाम होएगा। देखो हुण इहदे विच किहड़ा ठीक आउंदा, ये क्लोरो पहला लिखता है, ये ब्रोमो ते नाइट्रो आ गया, ब्रोमो ते क्लोरो ये आ गया, ये नाइट्रो पहला, यदा मतलब ये वाला ठीक है। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब दी सेम ही है। नैक्सट है द ऑक्सीडेशन नंबर, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कंपलैक्स सिस वाले दे विच क्रोमियम दा ऑक्सीडेशन नंबर, डी ऑर्बिटल केड़ा ऑक्यूपाई करेगा, ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾਲ, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दसना इसका। देखो पहला तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो, X हो गया, ये टू हो गया -2, इतने -1, इतने भी -1, ये 0 आएगा बेटा, गलत बोल गई मैं, ये 0 आ, ये -1 और ये भी -1, ये -1 किन्ने बन गए हुण X + 0 × 2, ठीक है, +- 1 × 2, कैलोरी ने 2 ने ना,
इंटू 2 हो गया प्लस -1 ये वाला सिंगल ही है इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो गया 3 हो गया प्लस का 3 आ गया। ठीक है प्लस का 3 किन्ने 3 जने च है। चलो नैक्सट आप हम देखते हैं इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। डी ऑर्बिटल केड़ा ऑक्यूपाइड कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेंगे आप। कोऑर्डिनेशन नंबर किन्ने हो गए ये 2 तो ये वाले हो गए तो ये बाइडेंडेट है ये लिगेंड। ठीक है जी 4 हो गए है 4 to 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 भी हुण 2 दे विच है। हुण इस तो बाद तुसीं देखना क्रोमियम दा किहड़ा जिहड़ा ऑर्बिटल आ ਉਹ इनर ऑर्बिटल लैंदा 3D वाला लैंदा ਜਾਂ 4D वाला लैंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा 4D वाला लैंदा ਇਹ 3D वाला नहीं लैंदा ਜਿਹੜੀ पेयरिंग इलैक्ट्रॉन्स ਦੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ C +3 3D सॉरी इनर वाला लेगा 4D वाला नहीं लेगा 3D वाला लेगा ये ऑर्बिटल है ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ +3 3D 6 होएगा। नैक्सट हो गया विटामिन B12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਬਾल्ट मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर एस्टाइलाइड टू फॉर्म प्रोपाइन। नेक्स्ट हो गया द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज लुकास टेस्ट। फॉर्मेशन ऑफ cyanohydrin फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Decarboxylation of sodium benzoate on heating with soda lime gives benzene। ये पिछली वीडियो दे विच भी क्वेश्चन हो चुके। नैक्सट IUPAC नेम दसना तुसी ऑक्सैलिक एसिड दा। ऑक्सैलिक एसिड दा IUPAC नेम की होगा 2 कार्बन दे नाल कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग्या होगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। नैक्सट है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल बन गया तो एक एसिड बन गया। एक इहदे विच बनदा हुंदा कैनिज़रो रिएक्शन दे विच। नैक्सट पैराग्राफ आ फिर आप करते हैं हुण ट्रू फॉल्स। कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन ए जिंक वैसल। नहीं स्टोर किया जा सकता जिंक आ जिहड़ा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आ इट इज़ फॉल्स। ऑक्सैलेट लिगेंड इज एम्बीडेंटेट लिगेंड ये भी फॉल्स है। फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद कास्टिक एल्कलीज फॉर्म्स मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट कह लो या चलो यही नाम रखो तुसी यह हैगा इहदा ट्रू। प्राइमरी एंड टर्चरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग सोल्यूशन हिंज वर्ग दे नाल होएगा ये फॉल्स है। एनिलीन एंड साइक्लोहेक्साइल अमाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एजो डाई टेस्ट इट इज़ ट्रू। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ने ये वाला जिहड़ा न्यूमेरिकल है हुण फस्ट जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट वाला ये पहले जिहड़े पेपर कीते सी आपां सैकेंड थर्ड फोर्थ फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ उहदे विच ये आया होया 2 वारी पेपर्स दे विच उत्थे चंगी तरह मैं समझाया होया। Addition of 0.643 grams of a compound to 50 ml of benzene lowers the freezing point। freezing point lower कर रहा है कैलकुलेट की करना molecular weight of the compound। फार्मूला पता थानू डेल्टा TF is equal to KF into मोलैलिटी। मोलैलिटी का अगों किमें लिखते हो तुसी W2 over W1 इंटू M2 इंटू 1000। ठीक है फार्मूला हो जाएगा KF इंटू ये हारेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू तो ये आप फाइंड आउट की करना कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड जान के मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना ना आप WM2 फाइंड आउट करना ये वाला करना आप बाकी सारे एक साइड ते करके इसनू बाकी सारी जेडे हैगे ने जो भी तुसी फिल करोगे वैल्यूज़ वो एक साइड ते कर देने तुसी लैफ्ट या राइट मतलब अलग अलग कर देने। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ बेटे बॉइलिंग पॉइंट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट हो गया भी इनू तुसी प्रूव करना है। नैक्सट फिर देखो नॉर्मैलिटी दिती हुई है रेजिस्टेंस दिता हुआ लैंथ दिती हुई है एरिया क्रॉस सैक्शन दिता हुआ फाइंड आउट की करना
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिता होया, फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स देखो पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 60 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। हाउ मच टाइम विल इट टेक 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। प्रैपरेशन पोटाशियम परमैंगनेट ये वाले रिएक्शंस मैं पहले वीडियोज़ दे विच लिखे हुए ने, तो वैसे तुसी बुक तो भी कर सकते हो आराम नाल। ये वाले इंपॉर्टेंट ने, पायरोलुसाइट पोटाशियम परमैंगनेट की प्रैपरेशन तो पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रैपरेशन। नैक्सट है एक्सप्रैस कोआर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इन। कोआर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हुण जिहड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि कोआर्डिनेट कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ, ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 6 इधर क्रोमियम दे नाल NH3 6। समझिए सेंट्रल मैटल एटम दे नाल लिगेंड्स चेंज हो जाते हैं, उन्होंने कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। विक्टर मेयर का गया सेकेंडरी वाला। फिनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट एसिटिक एसिड इज लिक्विड वाइल एरोमेटिक एसिड्स आर सॉलिड्स। हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए दसना। नैक्सट न्यूमेरिकल आ गया फेयर 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलैक्ट्रोलिटिक एनक्लोज्ड बिटवीन 2 प्लैटिनम वायर्स। इलैक्ट्रोड्स पॉइंट लेंथ दी हुई है। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए दिता, 30 ओम रेजिस्टेंस दिता, इत्थे कंसनट्रेशन सी दी हुई है। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। फार्मूला की हो गया इसका, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर कंसनट्रेशन। इत्थे डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना है, ई सैल फाइंड आउट करना है। ई सैल का फार्मूला की हो गया, ई नॉट सैल माइनस 0.059 ओवर एन ते लॉग उपर तुसी प्रोडक्ट्स जड़े प्रोडक्ट आयन वाले और रिएक्टेंट आयन्स वो वाले लिखने, और जी नॉट का होएगा माइनस NFE। ई नॉट जी नॉट पाया तो ई नॉट पा दो इतने। नेक्स्ट है क्या, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ टाइम दिता होया उसने, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90% कंप्लीशन के लिए असी टाइम कढ़ना है, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ k फाइंड आउट कर लोगे। हाफ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, हाफ लाइफ पीरियड ਦਿੱਤਾ है उसने। 1/2 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 ओवर k। ਇਹ वाली वैल्यू ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ k फाइंड आउट कर लो, उस तो बाद फिर 90% वाला ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। वाई डू ईथर्स पोजेस डाइपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए ईथर्स ਦੇ। नैक्सट प्रैपरेशन करनी है फिनॉल तो। नैक्सट हो गया डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक दे सिमिलैरिटीज़ जरूर करनी है। आपकी काफ़ी चांसेस ने कि सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन आएगा तुहानू। नेमिंग रिएक्शंस हो गए, वही क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट होंगे ने। नैक्सट आ गया अपना पेपर 10th पेपर। ਇਹਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन आ द ऑस्मोटिक प्रेशर of equimolar solutions of glucose, sodium chloride and barium chloride will be in the order of, ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ऑस्मोटिक प्रेशर ਇਹਨਾਂ ਦਾ फर्स्ट ऑप्शन है इसकी। at high altitude the boiling point of water decreases because the atmospheric pressure क्योंकि ਉੱਥੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the number of moles of sodium chloride in 3 liter of 3 molar solution, 3 molar solution 9। number of Faraday required to reduce
1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू 1 ये बेटा थानू इत्थे पहला एक्स एदा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn दी चाहिए थानू MnO4 दे विच क्योंकि Mn2 प्लस दिता ना कि किन्ने इलैक्ट्रॉन्स लूज करदा जां गेन करदा वो तुसी देखना इनू एक्स कड्डोगे तो ऑक्सीजन के उत्ते का -2 आल ओवर के उत्ते माइनस है तो तुसी करोगे एक्स प्लस -2 × 4 ऑक्सीजन 4 ने ना इज इक्वल टू -1 एक्स -8 इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 -1 + 8 इज इक्वल टू +7 ठीक है जी +7 तो यदा मतलब मैगनीज आ जोड़ा Mn+7O4 नैगेटिव है जोड़ा ये +7 की स्टेट ते है +7 तो +2 ते जा रहा है मतलब 5 इलैक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है ठीक है जी 5 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यदा मतलब 1 मोल के लिए अपन 1 इलैक्ट्रॉन मोल 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के लिए अपन 1 फैराडे चाहिए 5 के लिए 5 फैराडे इन्हें लकलांचे ड्राई सैल एनोड केड़ा हुंदा इहदे विच जिंक कंटेनर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 आवर्स 75% कंप्लीट इन 4 आवर्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तुसीं फाइंड आउट करना है इसका इहदा फर्स्ट ऑर्डर आ कड्ढिओ इसनूं न्यूमेरिकल नूं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन है द टेंपरेचर कोएफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइज बिटवीन 1 and 3 ए ऑप्शन आएगी इसकी An octahedral complex is formed when hybrid orbitals of following types are involved. Octahedral कदों बनती हैगी ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ octahedral complex बनता ਤਾਂ ਉਹਦੀ hybridization किस तरह ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ sp3d2 which of the following ligand forms a chelate chelate ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ oxalate complex next हो गया COF6 3 negative इज केड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੇਟਾ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ द फार्मूला ऑफ IUPAC टेट्रा कार्बोनिल निकल देखो ਇਹਨੇ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟਰਾ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਨਿਕਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 0 ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰੋ ਐਥੀਲੀਨ ਵੈਸਟਰੋਸੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ जिन्ना उसका मास ज़्यादा होएगा ब्यूटेन 1 मोल द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना आप मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड उस तो बाद करवानी आप हाइड्रोलिसिस ये बनेगा प्राइमरी अल्कोहल द प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ते कार्बन डाइऑक्साइड और फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड हुंदा और ये वाला रिएक्शन आप पिछले दे विच भी आ गया है ठीक है पिछले पेपर च भी आ गया कैनिजारो रिएक्शन नैक्सट पैराग्राफ आ गया पैराग्राफ पढ़ के तुसी क्वेश्चंस के आंसर देने ने और नैक्सट आप हुण करते हैं ट्रू फॉल्स के विच इलैक्ट्रोलाइट्स आर सबस्टेंसेस विच कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट इलैक्ट्रोलाइट्स आर सबस्टेंस विच कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट ट्रू है नैक्सट ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इस तरह के कोई दो तो इदा के मैटल दिते नहीं हुए मैटल लाइन भी उसका एक दा लिगेंड लैके एक नाल लग जाए और मतलब इंटरचेंज हो जाए लिगेंड्स इस करके ये की होंगे सिर्फ ब्रोमीन बाहर आ सकता सल्फर डाइऑक्साइड जो अंदर जा सकता है मतलब केड़ा हो गया है आयोनाइजेशन वाला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इस करके ये वाला की है फॉल्स एस्टैल्डिहाइड cyanohydrin on hydrolysis gives lactic acid ये ट्रू है
एनिलीन इज मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन, ठीक है जी। Gabriel's phthalimide synthesis in which alkyl halides can be changed to primary amines, ये भी ट्रू है, प्राइमरी अमाइंस ही बनते हैं। नैक्सट बेटा न्यूमेरिकल्स आ गए, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है पहला, फिर मोल फ्रैक्शन आ डिफरेंशिएट करना मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दे विच, EMF कढ़ना, डेल्टा जी कढ़ना, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्पैसिफिक रेट कांस्टेंट इज के, देखो के दिता बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल दिता उसने। हाफ लाइफ पीरियड कढ़ना है के दिता होया, किहदा कढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर का, T 1/2 इज इक्वल टू 0.693 ओवर के दी वैल्यू दी हुई है, तुसीं फिल करके थे फाइंड आउट करने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15% कंप्लीट इन 30 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक प्लेस कंप्लीट 50% दी कंप्लीटली। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, यूनिडेंटेट, एम्बिडेंटेट, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, हेल्वोल होल्ड्स, ज़ेलेंस्की रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। टू डिफरेंसिस बिटवीन स्टार्च एंड सैलूलोज, स्टार्च ते सैलूलोज दे विच तुसीं दो डिफरेंस दसने ने। नैक्सट आ गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट दा मोलर कंडक्टेंस HCl दा सोडियम क्लोराइड दा दिते हुए ने, ठीक है जी। तो तुसीं मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड दी करनी है, लास्ट ईयर के पेपर दे विच ये क्वेश्चन आया सी, एसिटिक एसिड दी करनी है CH3CO, CH3COH कितों मिलूगा, एक तो CH3CH ये तो मिलूगा सानू, H सानू ये तो मिलेगा, ठीक है। फिर जो ये सोडियम आ गया तो क्लोरीन आ गया, तो इन्होंने दोनों असी माइनस करना, यदा मतलब इन्होंने दोनों दी वैल्यूज़ नू प्लस करना, सोडियम क्लोराइड की वैल्यू नू माइनस करना, बस इन्ने ना आंसर आ जाना। नैक्सट है डेल्टा G0 फाइंड आउट करना, तुसी E0 सैल दिता होया, F दिता होया, सिंपल है भी क्वेश्चन, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0, ठीक है। N तुसी इत्थे फाइंड आउट करना कितना आऊगा, इलैक्ट्रॉन्स कितना आऊगा, इलैक्ट्रॉन्स का नंबर, F दिता होया और E0 भी दिता होया। रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90 per second. How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/20th of its initial value? Next विक्टर मेयर का फिर आ गया सेकेंडरी दे विच, हिंसबर्ग टेस्ट, 3 डिफरेंसिस बिटवीन लेंथेनाइड का एक्टिनॉइड, D&F ब्लॉक हो गया, नेमिंग रिएक्शंस हो गए, SN1 ते SN2 मैकेनिज्म दे विच डिफरेंस, हाउ टू प्रिपेयर प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol, प्रोपीन तो प्रोपेन 1-ol बनाना, इथेनॉल तो बट 1 आइन। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन पेपर है तुहाडा दविंद्रा का लास्ट क्वेश्चन पेपर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि क्रायोस्कोपिक किहड़ा हुंदा है फ्रीजिंग, डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिहड़ा आपां शो करदा, मोलर डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिन्होंने तुसीं लिख दोगे KF। नैक्सट आ गया मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है बेटा, इससे इसनूं तुसीं फाइंड आउट करना, कड्डिओ अपने आप इहदा रिजल्ट की निकलदा। विच ऑफ द सोल्यूशन KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पैसिफिक कंडक्टेंस, स्पैसिफिक कंडक्टेंस इसकी तुसीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ज़्यादा, विच ऑफ द सोल्यूशन ऑफ किहड़े सोल्यूशन दी इहदे विच हाई होएगी, ए 1 मोलर होगा। वैन लैड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जिस, जो लैड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होंदा तो किहड़ी चीज़ कोई इन्हां दे विचों की चेंज आउंदी है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होंदा वो कंज्यूम हो जाता है। फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम इज X, रेट है X। इफ द इनिशियल कंसनट्रेशन इज ट्रिपल्ड द रेट विल बिकम 3 गुणा कर दी जाती है जेकर इनिशियल कंसनट्रेशन, ठीक है। इनिशियल मान लो भी 3 है तो आप 3 कर देंगे जी, तो 3 3 की होएगा 9x। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिता है कंप्लीट 32 मिनट्स, देखो न्यूमेरिकल है, सॉल्व करो तुसीं इसनूं। स्पैसिफिक रेट फॉर ए रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो इत्थों तुसीं यूनिट्स तो पता करना बेटे, कहता स्पैसिफिक रेट फॉर ए रिएक्शन दिता होया वैल्यू दी हुई है उसने, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना, तुसीं इत्थों देखना
यूनिट किहड़ा है, यूनिट्स तुहानूं दस्सणगे ये किहड़ा ऑर्डर है, फस्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, या वन ऑर्डर या सैकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये वाला हैगा जीरो ऑर्डर का। वट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लैनी है, ਇਹਦਾ -1 ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਨੂੰ x ਆ, ਇਹ +1 ਆ, फाइंड आउट करियो ਹੁਣ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, कौन नहीं शो कर सकता, अमोनीया। EDTA ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈਗਜ਼ਾਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ IUPAC ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, x होगी, -1 हो गया और ये -1 होएगा। ये नाम बस अल्फाबेटिकली नाम लिखने ने इन्हां दे। ये C वाला आएगा पोटाशियम पेंटासियानो नाइट्रोसिल फेरेट। क्लोरोइथेन ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी मिथाइल हो गया। हेलो अल्केन अल्कोहलिक, मैं तुहानूं पिछली वीडियो दस्सिया सी, जेकर अल्कोहलिक लग्या तो अल्कोहल नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, हुण इथेन आ तो इथीन बन जूगा, समझ गए। जेकर एक्वस लिखिया होगा तो अल्कोहल लगूगा। एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आ देखो हुण आ गया नाल ही ये क्वेश्चन पाता उन्हें। एल्काइल हैलाइड्स ट्रीटमेंट जेकर एक्वस ना तो अल्कोहल बनेगा, समझ गए। जे तो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो अल्कोहल नहीं बनेगा, ठीक है, तो की बनेगा, एल्कीन बनूगा। कोई भी जो भी नाम इत्थे लिखा होगा ईन बन जाना। और जेकर एक्वस लिखिया तो अल्कोहल बनेगा। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, सोडा लाइम के नाल की बनाएगा, ये पिछली बारी भी क्वेश्चन आ गया, बेंजीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन कौन रिड्यूस करेगा, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम क्या है, मिथेनोइक एसिड। स्ट्रोंगेस्ट एसिड ये सब तो स्ट्रोंग एसिड किहड़ा होगा, पैरा, पैरा नाइट्रो। ठीक है, नैक्सट पैराग्राफ अगे आप हुण करते हैं ट्रू फॉल्स। इन जिंक कॉपर सेल कॉपर एक्ट्स एज ए कैथोड, कॉपर कैथोड जिहदे ते की होएगा, रिडक्शन। ठीक है बेटे, ये ट्रू आ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का इत्थे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, इज 6। ठीक है, ये कढ़ लिया, तुसीं कढ़ के देखियो हुण। 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इज लैस एसिडिक दैन 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, गैब्राइल फ्थैलेमाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, नो ये गलत है। एल्काइल प्राइमरी अमाइन्स बनाता है, फाल्स है। सेकेंडरी अमाइन्स हैव NH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट आ गया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, वट टेम्परेचर दिस सोल्यूशन विल बॉयल। KB फॉर वाटर दिता, बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कढ़ना तुसी। Solution of 12.5 gram of non-electrolyte solute in 175 gram of water gave an elevation of boiling point, ये भी boiling point ਨਾਲ related ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ find out करना, molecular mass find out करना ਇੱਥੇ solute ਦਾ। intravenous injection ਦੇ ਲਈ great care ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। solution to be injected to that of blood plasma। next EMF find out ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। E order with respect to each reactant and overall order for the following reaction। ईच रिएक्टेंट का दसना, रिएक्टेंट इक्को ही है, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। तो इसका तुसी ओवरऑल भी दसना है, सिंगल ही है। तो ये किहड़ा है, फिर फस्ट ऑर्डर का 1 है, ये तो 1 फस्ट ऑर्डर के फिर वो यूनिट्स भी दसने ने, ठीक है, पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90% ऑफ रिएक्शन गेव, टाइम कढ़ना सी ऑफ फस्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90%। ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल पहला भी आ गया पिछले पेपर च। गिव द प्रैपरेशन ऑफ पोटैशियम डाइक्रोमेट क्रोमाइट ओर तो बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट ने बेटे। पोटैशियम डाइक्रोमेट नू क्रोमाइट तो बनाना, पोटैशियम परमैंगनेट नू पायरोलूसाइड तो बनाना। ये रिएक्शन लाजमी तुहाडे टिप्स ते होने चाहिए ने। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नेक्स्ट
Write the reactions of benzene diazonium chloride with aniline. Next numerical फिर आ गया, resistance of 0.25 molar solution of an electrolyte was found to be 75 ohm. resistance ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, concentration ਦਿੱਤੀ ਹੈ, if the electrodes in the cell ਨੇ L ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, area of cross section ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, find out ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ molar conductivity, ਕਾਪੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। next calculate the equilibrium constant ਹੋ ਗਿਆ। first order reaction taken 45.4 minutes for 50%, 60%, primary secondary tertiary alcohols ਦੀ dehydrogenation। नेक्स्ट आ गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शन हो गया, गैब्राइल फथैलेमाइड रिएक्शन हो गया, और फिर 3 कॉन्सिक्वेंसेस लिखने ने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ते। वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आउट ऑफ सिल्वर आयन एंड कोबाल्ट 2+, विच वन विल बी कलर्ड, केड़ा कलर्ड है। देखो अटोमिक नंबर उन्हें सिल्वर का दिता है 47 ते कोबाल्ट का दिता है 27। उस तो तुसी देख लेना किहदे विच अनपेयर्ड ने, जिस अनपेयर्ड ने वो कलर्ड होएगा, जिस पेयर्ड ने वो कलरलैस होएगा। वाई इज +2 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ टाइटेनियम मोर स्टेबल दैन +3, ਇਹਦਾ भी देखो ऑक्सीडेशन ਉਹਨੇ सॉरी एटॉमिक नंबर दिता है, उस तो तुसी देख लेना है +2 ऑक्सीजन स्टेट जी टाइटेनियम दी स्टेबल क्यों है। नैक्सट जिंक का जो ट्रांजिशन एलीमेंट, कमेंट ऑन इट। फिर नेमिंग रिएक्शन हो गए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, अल्मैन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, हैलोजिनेशन ऑफ हैलोअरीन्स। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, उन्हां दी मैकेनिज्म दे विच डिफरेंस दसना। नैक्सट हैगा वाई द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्राइट फॉर्म्स नाइट्रोअल्केन एंड विद पोटाशियम नाइट्राइट फॉर्म्स एल्काइल नाइट्राइट। ये भी काफ़ी बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका। इस तरह बेटा ये हुण दविंद्रा गैस पेपर दे 11 ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन पेपर सी सारे ਦੇ ਸਾਰੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर ਲਏ ਨੇ। जो टिप्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ कि मैडम ये वाला क्वेश्चन सातों सॉल्व नहीं होया, जां ये रिएक्शन नहीं पता लग्या, जां ये वाला न्यूमेरिकल नहीं पता लग्या, तो मैं जरूर नैक्सट वीडियो से तुहानूं सॉल्व करके देवांगी। और मेरी वीडियो वधिया लगी तो बेटा लाइक जरूर कर देना है और मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ। थैंक यू। इस तो बाद मैं नैक्सट हुण अगले जिहड़े मॉडल टेस्ट पेपर ने उन्हां नूं कंटिन्यू करूँगी कैमिस्ट्री दे, और बायो दे क्वेश्चन पेपर भी मैं जरूर अपलोड करूँगी। तुहाडे प्री बोर्ड पेपर भी आ गए हैं। इस तो बाद हुण वीडियो मैं बायोलॉजी दी +2 दी अपलोड करूँगी। देखते रहना, मेरे चैनल ते बने रहना।